Hello CLAT PG aspirants, welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So let's start with the discussion. Hello everyone. So, continuing with our series of most relevant judgments of Supreme Court of 2025, today we are going to discuss a few relevant cases on the subject of right of persons with disability. Starting with the first case, अगर आप first case देखोगे, in this case of Gulshan Kumar versus Institute of Banking Personals Selection and Others, कि अगर कोई भी पर्सन कभी भी अगर आपने कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन दी होगी, so you would have referred some organization named as IBPS की जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है इन एग्जाम्स को, बैंकिंग एग्जाम्स हो गई, तो उनके रिस्पेक्ट में एक बॉडी होती है आईबीपीएस करके. सो इस बॉडी क्या करती है, कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ बैंक्स. तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, अगर वो किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, so the question before the Supreme Court in this case was, if a person who is suffering from any disability, if there is a person with disability, and so there are two concepts, person with disability and person with benchmark disability. Okay, so the right of persons with disability act provides certain classification of persons. So it provides there are two types of persons, right? Persons with disabilities and person with benchmark disabilities. So the question before the court was कि जो ये banking examination है, अगर कोई भी person is suffering from any disability, क्या उसके पास scribe का right होना चाहिए? कि अगर हम देखते हैं कि if a person cannot see, cannot write, तो उस केस में उनको एक additional writer मिल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, scribe बोलते हैं. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं the question before the Supreme Court was, if in this examinations the persons with benchmark disabilities are allotted a scribe on the basis of their disability, so does this scribe should not also be awarded to the persons with disability also? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ग्रेविटी ऑफ डिसेबिलिटी हो सकती है. कि जब हम बात करते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में, तो ये होता है कि अगर जो भी पर्सन है उनको 40% डिसेबिलिटी है with respect to their case, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, that the person is a person with benchmark disability. So if the disability is less than 40%, तो उनको हम जनरली क्या बोलेंगे, जनरली हम उनको person with disabilities बोल सकते हैं. But a person with which is having or who is having 40% of the disability, जो भी उनको disability है उनकी रेंज क्या है, 40% या उससे ज्यादा की है, so that person can be specifically known as person with benchmark disability. So this option of giving scribe to a person who is affected by certain disability, this should only be awarded to a person with benchmark disability or also to a person with disability, was the question before the Supreme Court. ठीक है, ये समझ में आया? तो स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स, अगर यहाँ पे हम फैक्ट्स देखें, जो एक पर्सन है जो कि एक डिसेबल्ड पर्सन है, बट उनकी डिसेबिलिटी इतनी नहीं है कि उनको हम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोल दे, फिर भी वो क्या मांग रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर अ स्क्राइब इन दिस एग्जामिनेशन. क्योंकि जब वो कॉलेज लेवल पे थे तब भी उनको स्क्राइब का ऑप्शन दिया गया था बाय द यूनिवर्सिटी, बट नाउ व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ ही इज नॉट अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिर भी उनको क्या मांग रहे हैं, वो स्क्राइब का ऑप्शन मांग रहे हैं. सी, Gulshan Kumar, diagnosed with focal hand dystonia, permanent writing disability, sought examination accommodations while appearing for recruitment exams conducted by bodies like IBPS हो गया, SBI हो गया, other जितनी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है, जैसे SBI की होती है, IBPS की होती है, जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं उनमें ये क्या मांग रहे हैं, ये अकोमोडेशन मांग रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्क्राइब. See, despite having a unique disability ID and past permission to use Scribe in
एकेडमिक एग्जाम्स जब वो 11th या थे 12th में थे कॉलेजेस में थे जब उनको अलाउ किया गया था बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन his request for a scribe and extra time were rejected because his disability did not meet 40% benchmark disability so यहाँ पे जो IBPS है या SBI है उन्होंने इनको मना क्यों कर दिया because they are not a person of benchmark disability that's why they are saying this option of scribe or an additional time कि अगर आपने देखा होगा in with respect to persons with disabilities or benchmark disabilities they are allotted extra time with respect to examination तो यहाँ पे the contention of the person was that he should also be awarded the option of scribe and additional time even if he is not a person with benchmark disability. Kumar filed a writ petition under Article 32 arguing that this exclusion was discriminatory. So if you are only allowing a person with benchmark disability the option of scribe or additional time and not a person with normal disability or person with disability तो उस केस में ये क्या बोल रहे हैं this is violating the fundamental right this is discriminatory and contrary to rights of person with disability act of 2016 कि अभी हम ये एक्ट देखेंगे इसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस देखेंगे कि क्या राइट्स हो सकते हैं पर्सन क्या राइट्स हो सकते हैं पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के और पर्सन ऑफ विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के ठीक है सी सो द इशू बिफोर कोर्ट वाज कि यहाँ पे क्या ये जो स्क्राइब है या एडिशनल टाइम है या जो भी जो बेनिफिट्स जो हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन को दे रहे हैं क्या हमको ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी देना चाहिए क्या वेदर लिमिटिंग स्क्राइब फैसिलिटीज एंड कंपनसेटरी टाइम इन ओनली दोस विद 40% और मोर डिसेबिलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं कि अगर सपोज किसी को विजन इंपेयरमेंट है सो इफ द विजन इंपेयरमेंट इज ऑफ 40% और मोर तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं द पर्सन इज ऑफ बेंचमार्क disability but if some person has a vision impairment which is not of 40% तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उनको सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी बोल सकते हैं उस केस में उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी का आईडी तो मिलेगा बट जो बेनिफिट्स जो हमने सिर्फ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन को दिए वो नहीं मिल रहे सो इज डिस्क्रिमिनेटरी क्या हम बोल सकते हैं इज इट डिस्क्रिमिनेटरी एंड वॉयलेटिव ऑफ आरपीडब्ल्यूडी कि यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 है क्या उसके वॉयलेशन में है एंड राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस अंडर आर्टिकल 14 15 एंड 21 की आर्टिकल 21 क्या है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सो अगर आप जो भी पर्सन है सिर्फ अगर राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी है उनको ये ऑप्शंस नहीं दे रहे हो तो क्या ये उनके राइट टू लाइफ को वॉयलेट नहीं कर रहा है whether all persons with disabilities irrespective of the percentage are entitled to reasonable accommodation during examination so the term which is very much important for you to know is reasonable accommodation या accommodation term क्या होता है कि अगर suppose कोई भी person है if a disabled person wants to give any examination or wants to have an inclusive education तो ये accommodations क्या हो सकते हैं ये क्या घर के रहने की बात कर रहा है नहीं ये हम बोल रहे हैं कि अगर सपोज कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में आपको इंट्रोड्यूस करना है तो सर्टेन बेनिफिट्स हो गए सर्टेन आपको उनके फेवर में कुछ करना चाहिए तो वो क्या हो सकता है अकोमोडेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है फिजिकल अकोमोडेशन भी हो सकता है कि आप रैम्प फैसिलिटी बना दो कि टॉयलेट्स अच्छे उनके लिए बना दो या फिर जो एजुकेशन है कि अगर सपोज कोई पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनको आप उनका एग्जामिनेशन कैसे ले सकते हो ओरल एग्जामिनेशन ले सकते हो so all this are the reasonable accommodations which the authorities can make to inculcate or to include such persons in the normal society ठीक है नेक्स्ट लीगल प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं तो ये वर्ड क्या है बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर द 2016 एक्ट सी section 2R of the right of persons with disability act 2016 provides that person with benchmark disability means a person with not less than 40% हम यही बोल रहे थे कि अगर कोई भी पर्सन विजुअल इंपेयरमेंट उनकी 40% या उससे ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सो हियर the person not less than 40% of a specified disability where specified disability has not been defined कि अगर ये नहीं बताया है कि जो कंडीशन में अगर आपको ये नहीं है कि अगर सपोज हम बोल दें कि आपको
कि अगर अगर कंडीशन होती इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग वन हैंड, सो दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये हमको स्पेसिफाई कर दिया कि स्पेसिफाइड सिचुएशन में इस पर्सन को बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला माना जाएगा। बट अगर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ द इम्पेयरमेंट इज ऑफ 40% और मोर, then that person can be considered person with benchmark disability in a measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms। कि अगर measurable terms आपको बता दिए हैं कि if the person is not having one foot, one arm, तो उस केस में हम उनको benchmark disability बोलेंगे। but if such specification are not made, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, 40% या उसकी ज्यादा की अगर disability है, so this person can be considered a person with benchmark disability। नेक्स्ट, सेक्शन 2S। 2S में क्या बता रहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या है, जो जनरल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वुड आल्सो बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो क्या होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, person with disability means a person with long term physical, mental, intellectual, sensory impairment। ये हमने जब हमने राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था। सो रिवाइजिंग द सेम, हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पर्संस विद डिसेबिलिटी क्या है, जो इम्पेयरमेंट कैसी हो सकती है, लॉन्ग टर्म फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी हो सकती है इम्पेयरमेंट, which in interaction with barriers hinders his full and effective participation in the society equally with others। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, if the impairment is such जिसकी वजह से उसका जो सोसाइटी है उसमें जो नॉर्मल इंटरेक्शन है वो हिंडर हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, द पर्सन इज अफेक्टेड विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बात कर रहे थे कि अगर सपोज कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो कोई एक स्कूल में पढ़ना चाहता है जहाँ पे दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड नॉट बी सेग्रीगेटेड from the educational institution or from the education system just on the ground that the person is affected by certain disability। See, inclusive education means a system of education wherein student with and without disability, so there is no discrimination with on the basis of disability in education systems, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, inclusive education system बोल सकते हैं। learns together and the system of teaching and learning is suitably adapted। कि अगर सपोज कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी का है तो उस केस में उस चिल्ड्रन को भी हमको अकोमोडेट करना है और उसके रिस्पेक्ट में हम सर्टेन प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, सर्टेन अकोमोडेशंस कर सकते हैं। सपोज कि अगर कोई पर्सन फिजिकली इम्पेयर्ड है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उनको रैम्प्स का यूज करवा सकते हैं, लिफ्ट्स का दे सकते हैं, या फिर सपोज अगर कोई पर्सन डेफ है तो उनके केस में हम अलग से साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें भी हो सकती है to meet the learning needs of different types of students with disabilities। Next, person. Next is reasonable accommodation। So very important definition for this case is reasonable accommodation क्या है? So under section 2y 2 clause y, it provides what is reasonable accommodation। It means necessary and appropriate modification and adjustment without imposing a disproportionate or undue burden in particular case to ensure the to persons with disability the enjoyment or exercise of rights equally with others। कि हम क्या बोल रहे हैं कि certain measures should be taken, certain measures which are taken to accommodate such persons ताकि वो equally हम उनको treatment दे सके। see, without imposing a disproportionate or undue burden in particular case to ensure persons with disability the enjoyment or exercise of rights equally। कि अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि उनको भी अलाउ कर रहे हैं हम किसी भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो सर्टेन अकोमोडेशंस कैन बी मेड कि जैसे कि स्क्राइब हो गया, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम हो गया, या फिर उनकी जो सिटिंग हो गई, अगर फिजिकली इम्पेयर्ड है तो उनकी सिटिंग जो हो गई वो लोअर या ग्राउंड लेवल पे हो गई। तो ये सब क्या है, रीजनेबल अकोमोडेशन है। सो अगर सपोज किसी भी जॉब में फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसी पोस्टिंग कर सकते हैं जहाँ पे क्या हो, जो बिल्डिंग्स हो या फिर जो जितने भी काम हो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हैं या स्पेशल अकोमोडेशन दे सकते हैं ताकि उनका जो बेनिफिट उनका जो वर्किंग है वो इक्वली हो जाए एज पर द दूसरे अदर पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट,
Section 3 provides for equality and non-discrimination. So this act itself कि जो 2016 का Right with Persons of Disabilities Act है कि Right of Persons with Disabilities Act of 2016 है, in itself provides certain rights कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है, equality and non-discrimination. So on the sole basis of disability, any person cannot be discriminated in any case. The appropriate government shall ensure that the person with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others. तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट टू आपका जो 14 है 21 है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ 14 है 21 है उनको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और यहाँ पे वही कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे इनलिस्ट कर रहा है. सी, the appropriate government shall take steps to utilize the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment. वापस से बोल रहा है, जैसे हमने रीजनेबल अकोमोडेशन देखा था, वहां पे भी क्या बोल रहा है, appropriate environment में आपको उनको accommodate करना चाहिए. To utilize the capacity of person with disability by providing appropriate environment. if if a person with visual impairment is very much sharp, तो उस केस में उसकी जो शार्पनेस है, उसका जो माइंड है, उनको हमको यूज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए. तो उस केस में इफ द पर्सन इज विजुअली इम्पेयर्ड, तो उसी बेसिस के ऊपर आप उसको डिस्क्रिमिनेट मत करो, और उसके केसेस में भी उसको उसको क्या कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, उसकी एजुकेशन को फर्दर कर सकते हो. तो यहाँ पे आप उसको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो कि अगर सपोज उनको जो भी उनकी लैंग्वेज है वो सिखा सकते हो, जो भी उनका सपोज हम बोल सकते हैं ऑडियो लर्निंग्स हो सकती है, तो उस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि उनको एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी अनलेस इट इज शोन दैट इम्पंज्ड एक्ट और ओमिशन इज प्रोपोर्शनेट मींस ऑफ अचीविंग अ लेजिटिमेट एम. तो सर्टेन कंडीशंस पे आप डिस्क्रिमिनेट या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि अगर तो अलाउ कर सकते हो, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिकली रूल्स होने चाहिए, एक्ट होना चाहिए, तभी कर सकते हो. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ disability. Next, the appropriate government shall take necessary measures to ensure reasonable accommodation for persons with disability. तो वापस से reasonable accommodation है, तो यहाँ पे जो भी appropriate government है उनको क्या करना चाहिए, reasonable accommodation करना चाहिए, ताकि जो persons है वो equal treatment ले सके, equal benefits रियलाइज कर सके. नेक्स्ट, तो इस केस में जब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं थी, फिर भी वो क्या कंटेस्ट कर रहे थे, दे वांटेड अ स्क्राइब और एडिशनल टाइम फैसिलिटी व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज. तो आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, आर्ग्यू दैट डिनाइंग रीजनेबल अकोमोडेशन बेस्ड ऑन अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी थ्रेशोल्ड इज आर्बिट्री. कि अगर सिर्फ आप ये जो रीजनेबल अकोमोडेशन सिर्फ किसको प्रोवाइड कर रहे हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या है, आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है टू द पर्संस हु आर नॉट having benchmark disabilities and unconstitutional violating article 14, 15 and 21. Next, the Learned Council further pointed out that the respondent have acted in derogation to the principle enshrined by this court in Vikas Kumar versus UPSC, wherein it was held that it would be discriminatory to restrict the facilities of a scribe for only PW persons with benchmark disability. Next, that apart, in Avni Prakash versus National Testing Agency, this court has emphatically clarified that benchmark disability is not a precondition to obtain scribe or compensatory time in examination. So before this case also, certain courts have certain benches of the Supreme Court has established that this scribe option should not be restricted only to the benchmark disability person. But इस केस में हमने क्या किया, केस में उसको फर्दर रिफर करते हुए हमने उसको स्ट्रेंथन किया है कि यहाँ पे जो स्क्राइब फैसिलिटीज हो गई और सर्टेन डायरेक्टिव्स हैज आल्सो बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट की ये जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन सिर्फ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन के रिस्पेक्ट में लगाए हैं, या जो बेनिफिट्स है सिर्फ बेंचमार्क पर्सन के रिस्पेक्ट में लगाए हैं, वो गलत है. क्यों गलत है, हम देखेंगे रीजनेबल अकोमोडेशन के बेसिस के ऊपर. ठीक है, सॉट यूनिफॉर्म गाइडलाइंस एंड कंप्लायंस बाय ऑल एग्जामिनेशन अथॉरिटीज. तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के रिस्पेक्ट में था कि जो भी एग्जामिनेशन था उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने अलाउ किया था, बट देयर वर नो जनरल गाइडलाइन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल एग्जामिनेशंस. ठीक है. नेक्स्ट,
विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी जो केस रेफर किया गया है यहाँ पे पिटिशनर वो क्या है, ऑब्जर्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन हैज फाउंड अ मोर एक्सपेंसिव मैनिफेस्टेशन इन द 2016 एक्ट। सेक्शन 3 जो अभी हमने देखा गोज बियॉन्ड अ फॉर्मल guarantee of non-discrimination by casting affirmative duties and obligation on the government to protect the right recognized in section 3 by taking steps to utilize the capacity of person with disability by providing appropriate environment। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, उसके फर्दरेंस जाके हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल सेक्शन 3 of this act provides that certain obligations would be there on the appropriate government to provide appropriate environment for such persons। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, उनको रीजनेबल अकोमोडेशन करो, उनको appropriate environment प्रोवाइड करो, ताकि ताकि उनका भी इक्वली डेवलपमेंट हो सके एज कंपेयर टू अदर। सो दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया है क्या कि आपको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट या फिर जो रीजनेबल अकोमोडेशन सिर्फ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को देना है, नहीं। तो किस बेसिस पे आपने जो स्क्राइब फैसिलिटी है और जो आपका ये एक्स्ट्रा टाइम है उसको सिर्फ बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया। अमंग द ऑब्लिगेशंस व्हिच आर कास्ट ऑन द गवर्नमेंट इज द ड्यूटी टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वालिटी, non-discrimination and dignity are the essence of the protective ambit of the 2016 act। तो 2016 एक्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में, इसी रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इक्वालिटी हो गया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पर्संस की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेक्शन 17 requires suitable modification in the curriculum and examination system to meet the needs of the student with disability such as। तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि जो एग्जामिनेशंस में है, एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया, स्कूलिंग सिस्टम हो गया, उनमें सर्टेन चेंजेस इन करिकुलम होना चाहिए। क्या क्या हो सकते हैं, द एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, फिर एग्जामिशन फॉर सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, द गारंटी अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1 इज नॉट कन्फाइंड टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये जो सेक्शन 17 है जहां पे हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में आप स्क्राइब हो गया या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम की फैसिलिटी हो गई वो प्रोवाइड कर सकते हो, बट देर इज नो मेंशन दैट इट शुड ओनली बी प्रोवाइडेड टू बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन। नेक्स्ट द होल कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी विद इन द मीनिंग ऑफ 2R की जब हमने 2R में बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कंसेप्ट देखा, उसका पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन दिस 2016 एक्ट। तो हम देख सकते हैं 2016 एक्ट प्रोवाइड्स दैट सर्टेन रिजर्वेशन इन द पोस्ट और गवर्नमेंट पोस्ट में सर्टेन रिजर्वेशन कैन बी गिवन टू दिस डिसेबल्ड पर्सन। तो कौन डिसेबल्ड पर्सन है यहाँ पे, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो पर्सन है उनके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं देयर आर सर्टेन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट पोस्ट की। हम जैसे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पोस्ट आई तो उसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि सर्टेन पोस्ट आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑल्सो। तो वहां पे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज कौन है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है। सो द होल पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाज बिकॉज सर्टेन रिजर्वेशंस आर to be provided to them। See, with the meaning of section is primarily in the context of special provision including reservation that are embodied in chapter 6 of the 2016 act। Accommodation implies a positive obligation to create conditions conducive to the growth and fulfillment of the disabled in every aspect of their existence, whether as student, member of workplace, participants in government और पर्सनल प्लेन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका रीजनेबल अकोमोडेशन है वो क्या जरूरी है सिर्फ एक ही फील्ड में होना चाहिए, नहीं, सारी फील्ड में। कि अगर कोई जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो स्टूडेंट है या फिर वर्क प्लेस में है या फिर अगर सपोज कोई भी स्पोर्ट्स में है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सारे फील्ड्स में आपको उनको रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट रिस्पोंडेंट आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं, तो जस्टिफाइड प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो हमने बोला कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन के रिस्पेक्ट में ही हम जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई, जो स्क्राइब की फैसिलिटीज दी और जो यहाँ पे हमने बोला कि जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सिर्फ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिलेगा, ये जस्टिफाइड बोल रहे हैं बिकॉज एज पर द रूल्स। यहाँ पे क्या बताया, रूल्स में हमको सिर्फ इन्हीं को अलाउ करने का बोला है। तो जस्टिफाइड प्रोसीजर एज पर प्रिवेलिंग गाइडलाइंस एंड फॉर्म्स which provided accommodation only to candidates with benchmark disabilities, it is submitted that responded
जो IBPS है इज नॉट अ स्टेट। इन्होंने दूसरा क्या करा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिट पिटिशन लगाई थी अंडर आर्टिकल 32, तो वो किसके अगेंस्ट लग सकती है, स्टेट के अगेंस्ट लग सकती है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लगा सकते हैं। तो इस स्टेट में क्या आप IBPS को इंक्लूड करोगे कि नहीं? तो यहाँ पे कंटेस्ट क्या किया गया, दिस अथॉरिटी, दिस बॉडी इज नॉट अ स्टेट under article 12 of the constitution, is not a state as defined under article 12 of the constitution, and is instead a public ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट में नहीं आएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट इट इज नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी, कि अगर हम बोले कि IBPS का एक स्टेचुटरी बॉडी है, नहीं, हम बोल रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है और एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है under any specific statute, but an autonomous body that provides services to the participants banks। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट बैंक्स को, अगर सपोज कोई भी इंजीनियर है, कोई भी लीगल ऑफिसर है, अगर उनको अपॉइंट करना है, तो वो IBPS जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है उसके थ्रू वो करा सकते हैं। सो इट इज ओनली प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जाम, जिसके बेसिस पे जो बैंक्स है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, वो सर्टेन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन कंडक्टिंग टेस्ट टू fill up the actual reported vacancies. The activity of the respondent in conducting examination selection is voluntary in nature and no public function is discharged by them। कि अगर हम बोल रहे हैं ये जो IBPS है वो स्टेट नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं, तो स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि एक ये हम बोल रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये कोई पब्लिक फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। फर्दर इट डज नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि अगर ये हम बोलते ये फुली फंडेड है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर उनका कंट्रोल है, तो भी हम बोल सकते थे स्टेट है, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये फाइनेंशियली फंडेड भी नहीं है, ना ही इनके ऊपर कंट्रोल है, नॉट कंट्रोल इन एनी मैदर आइदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स डिपार्टमेंट, हेंस इट इज नॉट एमिनेबल टू द रिट्स जुरिडिक्शन। तो हम क्या बोल रहे हैं, द रिस्पोंडेंट इज सेइंग दैट इट इज नॉट अ स्टेट, IBPS इज नॉट अ स्टेट बिकॉज वो क्या है, पब्लिक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, उसके बाद में कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल इसका किसके पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना ही ये किसी डिपार्टमेंट से गवर्न हो रहे हैं, तो उस केस में इनके ऊपर ये रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होनी चाहिए। So this were the arguments of the parties. So now what court concluded in this case, कि हमने बोला कि ये जो स्क्राइब की फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा टाइम है, ये किसको भी देना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी देना चाहिए, बिकॉज इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द obligation to provide reasonable accommodation to every person with disabilities। तो यहाँ पे कोर्ट cited the judgment of विकास कुमार वर्सेस UPSC, ये भी हमने डिस्कस किया, अवनी प्रकाश वर्सेस NTA, नेक्स्ट अर्नब रॉय एंड कंसोर्टियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज एंड अदर। तो इसमें भी जो क्लैट के रिस्पेक्ट में भी एक केस है ऑफ 2024 इटसेल्फ, जहां पे ये जो फैसिलिटी स्क्राइब फैसिलिटी है उसके रिगार्डिंग में जजमेंट दिया गया था। सो ऑब्जर्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन इज सेंट्रल टू इंश्योर इक्वालिटी फॉर ऑल पर्संस विद डिसेबिलिटी। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो रीजनेबल अकोमोडेशन हमने देखा, जो सेक्शन 3 में हमने देखा कि रीजनेबल अकोमोडेशन करना चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई भी कंडीशन ये नहीं थी कि रीजनेबल अकोमोडेशन विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन ही करना है आपको, तो यह बोला गया था सबके रिस्पेक्ट में। and denying the facility of scribe or compensatory time constitutes discrimination under this act। तो इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसको तो वायलेट कर ही रहे हो, उसका आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, दिस कोर्ट ऑल्सो विशेस टू डिमिनिश द आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन एंड बाइफिकेशन drawn between candidates with disability and those with benchmark disability by extending various rights to candidature with disability that were earlier limited only to those with benchmark disabilities। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, ये आप क्या कर रहे हो, 2016 एक्ट के वॉयलेशन में भी है। नेक्स्ट में अब जो राइट सिर्फ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट किए गए थे उनके फेवर में ही थे, उनको भी हमने किसको ग्रांट किया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोविजन है कि जो रिजर्वेशन है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन के रिस्पेक्ट में है, वो तो उतना ही रहेगा, बट जितने भी दूसरे बेनिफिट्स है जो कि जरूरी है फॉर रीजनेबल अकोमोडेशन, उसको हमने क्या करा है, उसको बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में रख के हमने जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भी अलाउ किया है। फर्दर द एग्जामिनेशन बॉडीज
are stressed upon to implement accessibility measures, ensure that examination centers are physically accessible and equipped to accommodate disabled candidates, and ensure strict compliance with the Act of 2016 to prevent discrimination and provide equal opportunities for the persons with disabilities. The law is settled that the benefits given to benchmark disabled person candidates must also be extended to this candidates, and there can be no discrimination between the candidates in granting facilities such as scribes हो गया, compensatory time हो गया, etc. for reserve एक्सेप्ट फॉर रिजर्वेशन इन राइटिंग द एग्जामिनेशन। तो हम ये बोल रहे हैं रिजर्वेशन में आपको सेम बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, बट जितने भी दूसरे बेनिफिट्स है जो कि रीजनेबल अकोमोडेशन के लिए जरूरी है, उन बेनिफिट्स को वो सबके ऊपर लगेंगे और सबका इक्वल ही राइट होगा उसके फेवर में। ठीक है, the court decided is of the considered view that guidelines issued by the respondent number 5 government of India pursuant to the direction of this court have to be enforced by extending the benefits for person with benchmark disability candidates to all persons with disability candidates. So before this case, the government has issued certain guidelines with respect to persons with benchmark disabilities कि persons with benchmark disabilities के क्या right हो सकते हैं, कि जो स्क्रिप्ट की हो गया, एडिशनल टाइम हो गया, कि अगर हम बोल रहे हैं एग्जामिनेशन 1 आवर की है तो उनको 15 मिनट्स एडिशनल हो सकता है, तो वो सब कहाँ प्रोवाइडेड था, गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस जो गाइडलाइंस है जो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो ये गाइडलाइंस है उसमें जो भी बेनिफिट्स आपने बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन को दिए थे, अब वो किसके ऊपर भी लगेंगे, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर भी लगेंगे without any hindrance. The government to revisit the office memorandum dated this, remove the restriction and grant relaxation in reasonable manner and offer PWD candidates a choice of examination modes such as scribe हो गया, braille हो गया, large print हो गया, audio recording of answers हो गया। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो भी मेमोरेंडम है, जो भी आपने प्रोसीजर दिया है कि अगर सपोज कोई पर्सन है, कि अगर सपोज कोई पर्सन डिसेबल्ड है, उनको स्क्रिप्ट की फैसिलिटी चाहिए, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। ब्रेल की लैंग्वेज चाहिए कि अगर सपोज कोई विजुअली इम्पेयर्ड है बट वो क्या है ब्रेल लैंग्वेज से अकोमोडेटेड है, तो उस केस में आप एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में ले सकते हो, किस फॉर्म में, किस मोड में ले सकते हो, ब्रेल लैंग्वेज में भी ले सकते हो। लार्ज प्रिंट क्या कि अगर सपोज विजुअल इम्पेयरमेंट है और उसमें उनको क्या है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो कितनी है, ज्यादा नहीं है, बट उनको क्या नहीं दिखता है कि उनको स्मॉल लेटर्स नहीं विजिबल है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, लार्ज प्रिंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो इफ द पर्सन कैन नॉट राइट, इफ द पर्सन कैन नॉट राइट ड्यू टू एनी डिसेबिलिटी फॉर्म, तो उस केस में उनका क्या हो सकता है, ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ आंसर्स हो सकती है। एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ दिस स्क्राइब certificate currently being valid only for 6 months to prevent long wait after applying especially in rural areas। तो यहाँ पे जो हमने ये तो बोल दिया कि आप स्क्रिप्ट फैसिलिटी को ले सकते हो, बट स्क्रिप्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई करना, उनका मिलना, उसके लिए भी टाइम ले सकता है, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। टेक penal action against authorities in charge of decision making process who fails to follow the guidelines set out by the respondent 5 and formulate guidelines which exclude person with disability। तो यहाँ पे जब ये गाइडलाइंस को हमने बोल दिया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के रिस्पेक्ट में भी फॉलो होगी, तो अगर कोई भी पर्सन उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उनके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, पीनल एक्शन लिया जा सकता है। इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द लेटर्स एंड स्पिरिट ऑफ द जजमेंट इन विकास कुमार एंड अवनी प्रकाश एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ दिस 2016 एक्ट विद अ स्पेशल फोकस ऑन रीजनेबल अकोमोडेशन। ठीक है, सो द होल केस वाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन की जो पर्सन्स हैं उनको आपको क्या प्रोवाइड करना है, रीजनेबल अकोमोडेशन, और ये रीजनेबल अकोमोडेशन है irrespective of the fact the person is affected with benchmark disability or not। So ये था आज का जजमेंट। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।